Students, hope you are doing well. In last class, we learned basic concept of electricity, including Ohm's law. In this class, we will discuss the next topic, factors on which the resistance of a conductor depends. Before that, let's revise Ohm's law. What is Ohm's law? This law states that voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through the resistance. Now, what is resistance? Electrical resistance is the opposition to current flow. And as you know that I will explain every topic in both English and Hindi. So don't worry, let's start today's topic. For this, activity is 12.3. Look the circuit diagram. Complete an electric circuit consisting a cell, an ammeter, a nichrome wire of length L and a plug key. Okay. There are 4 wires. This 1, 2, 3 and 4. Now plug the key. Note the current in the ammeter. Connecting what? First wire. Wire 1. Replace the nichrome wire by another nichrome wire the same thickness but twice the length, that is 2L. Okay. Note the ammeter reading. Now replace the wire by thicker nichrome wire, this one, of the same length. A thicker wire has the larger cross section area. Again, note down the current through the circuit. Instead of taking a nichrome wire, connect a copper wire. This is the copper wire in the circuit. Let the wire be of the same length, same area of cross section as that of the first nichrome wire. Okay. Note the value of the current. Notice the difference in the current in all cases. Does the current depends on the length of the conductor? Second question is, does the current depends on the area of the cross section of the wire used? It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2. Ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is double. Okay, length of the wire is double, then ammeter reading decreases to 1/2. The ammeter reading is increased when the thicker wire of the same material and of the same length is used. A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used. Okay, now in Hindi, यहाँ एक सर्किट डायग्राम हम लोग देख रहे हैं. इसमें क्या क्या लगा है? एक सेल लगा है, अमीटर लगा है, की लगा है और यहाँ पर नाइक्रोम वायर लगा है. यहाँ पर 4 वायर्स ले लिया गया है. ठीक है, डिफरेंट 4 वायर्स लिया गया है और 4 डिफरेंट एक्टिविटी की जाएगी. वायर के बारे में पहले समझा दे आपको. जो फर्स्ट वायर है ये नाइक्रोम का, सेकंड नाइक्रोम का, थर्ड भी नाइक्रोम का, लेकिन फोर्थ वायर कॉपर का है. अब फर्स्ट वायर और सेकंड वायर में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वायर का लेंथ यदि L मानते हैं तो सेकंड वायर का लेंथ जो है 2L है, यानी इसके लेंथ के डबल है. अब फर्स्ट एंड थर्ड का देखते हैं कनेक्शन करके कि क्या हो रहा है, क्या रिलेशन है दोनों में. तो फर्स्ट का लेंथ और थर्ड का लेंथ सेम है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दोनों का डिफरेंट है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि मान लेते हैं कि A है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है. ओके. अब ऑब्जर्वेशन में क्या कहा? ऑब्जर्वेशन में कहा कि यदि लेंथ, वायर का लेंथ यदि बढ़ता है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, लेस होगा. तो मोर रेजिस्टेंस लेस करंट. एंड थर्ड वाले केस में जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, डबल हो गया, वहां क्या होगा? वहां इसका अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? करंट ज्यादा फ्लो होगा, यानी मोटे वायर में, मोटे तार में करंट ज्यादा फ्लो होता है. ओके, यही ऑब्जर्वेशन था एक्टिविटी 12.3 का. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसको क्या किया? अब डायरेक्टली हम लोग बता रहे हैं कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है. क्या? रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ फर्स्ट, सेकेंड on its area of the cross section, and third is on the nature of its material. Okay, इन तीनों पर डिपेंड करता है. अब इन तीनों को डेरिवेशन के फॉर्म में यहां ला रहा है.
रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे हम, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस लिए थे नाइक्रोम वायर के और फिर कॉपर वायर के भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग था। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? R इज प्रोपोर्शनल टू L, और इसको पढ़ेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां लिखा हुआ है R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। जब 1/a होता है तो उसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। अब ये दो इक्वेशन बन गया, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। एंड प्रोपोर्शनल साइन से आपको मालूम है, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, डेरिवेशन वाले वीडियो में, कि प्रोपोर्शनल से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हमको इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब भी इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, और वो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? इसको पढ़ा जाता है रो। देखिए पी की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको पी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रो। ओके, और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि रो इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको क्या पढ़ा जाए? इसको कहेंगे क्या? रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट? ओम मीटर। एंड व्हाट इज दिस? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसका एक शॉर्ट में डेफिनेशन है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं 2 बार बोल देती हूँ, बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। Resistivity is a fundamental property of a material that quantifies how strongly it resists or conducts electric current. I repeat, resistivity is a fundamental property of a material that quantifies how strongly it resists or conducts electric current. Okay? अब आगे लाइन में आते हैं, क्या है? The metal and alloys have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter. They are good conductors of electricity. यानी जिसका रेंज यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी 10 to the power minus 8 ohm meter से लेकर के 10 to the power minus 6 ohm meter तक होगा, वो क्या होगा? वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके रिवर्स में insulators like rubber and glass have resistivity of the order of 10 to the power 12। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव में दिया है वैल्यू, 10 to the power 12 to 10 to the power 7 ओम मीटर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। And next line is both the resistance and resistivity of material vary with temperature। यानी टेम्परेचर के साथ साथ दोनों ही, रेजिस्टेंस भी एंड रेजिस्टिविटी भी दोनों वेरी करता है, कम ज्यादा हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, टेबल है जिसमें मटेरियल्स कुछ दिए हुए हैं और यहाँ पर रेजिस्टिविटी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें से जिसको मैंने मार्क किया है, इसको लर्न कर लीजिएगा, हो सके तो लर्न कर लीजिएगा। ऐसे एग्जाम्पल जब भी एग्जाम में आता है तो दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है, लेकिन बाय चांस कभी मिस हो जाए तो आपको लर्न रहेगा ये चार्ट, तो ठीक रहेगा आपके लिए। और यहाँ फिर से मैं इसको मार्क कर दिया, ये क्या है? नाइक्रोम। इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बताया गया, और यहाँ भी ये कंपोजिशन है नाइक्रोम का, इसको फिर से लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी टॉपिक से रिलेटेड ही होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से। यस, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर्स। अब ये क्या कर रहा है कि जो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसमें क्या होता है? काफी सारे रजिस्टर का यूज किया जाता है। अब वो रजिस्टर क्या होता है? अलग अलग तरीके से ज्वाइन किया रहता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, कभी सीरीज में रहता है और कभी पैरेलल में रहता है। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या हुआ? तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर है, 1, 2 and 3। ओके, यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है 1, 2, 3 रजिस्टर। तो इन 3 रजिस्टर को यदि हम एंड टू एंड, लुक एट दिस, ज्वाइन एंड टू एंड, यदि एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो इसको कहा जाता है सीरीज रजिस्टर। ये एंड टू एंड कैसे हुआ? देखिए एक रजिस्टर है, इसका यहाँ यदि हम इस स्टार्टिंग यहाँ मानते हैं और लास्ट यहाँ मानते हैं, तो यहाँ लास्ट हुआ, दूसरे का ये फर्स्ट हुआ, फिर इसका ये लास्ट हुआ, तीसरे का फर्स्ट हुआ। तो इस तरह से एंड टू एंड यदि ज्वाइन है तो उसको क्या कहा जाएगा? सीरीज रजिस्टर कहा जाएगा। चलिए इसके पूरे डायग्राम में आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका पूरा डायग्राम है। देयर आर 3 रजिस्टर R1, R2, R3 एंड ज्वाइन एंड टू एंड।
यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ अमीटर लगा दिया, ये बैटरी हो गया और ये की हो गया। वोल्ट मीटर को एक बार ध्यान से देख लीजिए। वोल्ट मीटर क्या है कि ये रजिस्टर्स के पैरेलल में लगा हुआ है। जब भी कभी इसी तरह से एक लाइन ऊपर हो और एक लाइन नीचे हो, ऐसा कहीं भी आपको कॉम्बिनेशन दिखे तो आप क्या समझोगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर इस रजिस्टर्स के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ओके, एंड रजिस्टर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से ऊपर नीचे है। जो इस डायग्राम में मैंने बताया था कि ऐसे और ऐसे हो तो आप उसको पैरेलल समझना। तो यहाँ 3 रजिस्टर तो एंड टू एंड था, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो 3 रजिस्टर है R1, R2, R3 वो पैरेलल में है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन क्या कहा जाएगा? रजिस्टर इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज। अब इसके लिए एक्टिविटी है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है। क्या? What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in the circuit? क्या होगा? अब पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा करंट का यदि हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? What would be their equivalent resistance? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? करंट के बारे में पूछ रहा है और रेजिस्टेंस के बारे में बोल रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए एक्टिविटी 12.4 देखते हैं। Join 3 resistors of different values in series. Connect them with a battery, an ammeter and a plug. As you know, you may use the resistor of values like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, etc. and a battery of 6 volt for performing this activity. Plug the key, note the ammeter reading. Change the position of the ammeter to anywhere in between the resistors. Okay, note the ammeter reading each time. Now question is, do you find any change in the value of current through the ammeter? अब यहाँ हम लोग इस फिगर में आ जाते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है, रजिस्टर है, अमीटर है, और क्या कर रहा है कि इस अमीटर के रीडिंग को, अमीटर के पोजीशन को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे यहाँ लगा है तो यहाँ से हटा करके कहीं और लगा देंगे और फिर देखेंगे, उसके रीडिंग को लेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ रीडिंग में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? We will observe that the value of current in the ammeter is same. करंट के वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा, करंट सेम ही रहेगा। क्योंकि जब हम करंट को डायग्राम में दिखाते हैं, यहाँ से जो करंट को हम लेके जा रहे हैं तो इस रजिस्टर, जो पहला रजिस्टर है वहां भी सेम करंट जाएगा, दूसरे रजिस्टर में भी सेम ही करंट जाएगा और तीसरे रजिस्टर में भी सेम ही करंट जाएगा। यानी करंट में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, करंट के रीडिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है 12.5। फॉर दिस, ये पहले सर्किट डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। इंसर्ट अ वोल्ट मीटर across the end X and Y of the series combination of 3 resistor 1, 2, 3. Plug the key in the circuit and note the voltmeter reading. It gives the potential difference across the series combination of the resistor. Let it be V. Okay. Take out the plug key and disconnect the voltmeter. Now insert the voltmeter across the end X and P of the first resistor. Okay. Plug the key and measure the potential difference V. And we have taken as a V1. Okay. Similarly, measure the potential difference across the other 2 resistors separately. Let these values be V2 and V3 respectively. Deduce the relationships V, V1, V2 and V3. You will observe that the potential difference V is equal to the sum of the potential differences V1, V2 and V3. That is the total potential difference, across the combination of resistor in series is equal to the sum of the potential difference across the individual resistors. Okay. Now in Hindi, एक्टिविटी 12.5 के लिए पहले हम सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ की है, यहाँ अमीटर है और ये 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जिसको कि नोमिनेट किया गया R1, R2, R3 से। ओके,
और ये जो मेन 2 पॉइंट है रजिस्टर के पहले, इधर पहले और इधर तीनों रजिस्टर के बाद, वो मेन पॉइंट है एक्स एंड वाई। एट फर्स्ट क्या करेंगे कि एक्स वाई से कनेक्ट करते हुए वोल्टमीटर को लगा देंगे। लगाने के बाद इसके रीडिंग को नोट कर लेंगे और मान लेंगे कि उसका रीडिंग है V। यहाँ मैंने V लिखा है वोल्ट मीटर के लिए, प्लस माइनस लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो भी, उसको भी मान लेंगे V, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब क्या करना है, प्लग की को हटा देना है, यानी कि इसको स्विच को ऑफ कर देना है और यहाँ से जो कनेक्शन किया हुआ था इस कनेक्शन को हटा करके X और P के बीच में कनेक्शन कर देंगे और वोल्ट मीटर को यहाँ लगा देंगे। ओके, अगेन हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से रीडिंग ले लेंगे रिपीटेडली। R2 के लिए भी और R3 के लिए भी ऐसा ही करेंगे। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के। एक तो मेन XY से जब कनेक्टेड था तब, दूसरा R1 का V1 आ जाएगा, R2 का V2 आ जाएगा एंड R3 का V3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम इन चारों पोटेंशियल डिफरेंस का, जो एक V था हमारे पास, एक V1, एक V2, एक V3, इन चारों का रिलेशन देखेंगे कि क्या होता है। तो रिलेशन हमारा क्या है, बताता है कि इन सब का जो 3 पोटेंशियल डिफरेंस थे यहाँ पर V1, V2, V3, इन 3 को जब हम ऐड करेंगे तो मेन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये एक्टिविटी हमें बताता है। ओके, लुक एट दिस, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, और क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में बताना चाहता है कि यदि हम इन तीनों रजिस्टर को R1, R2, R3 को हटाना चाहे तो इसके बदले में हम सिर्फ एक R यानी कि मेन रजिस्टर भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा एक रिलेशन है, क्या, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR। ओके, और यहां हमको मिल गया है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। रजिस्टर क्या था, R1, R2, R3। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे के इक्वेशन को बनाते हैं। यहाँ देखिए, फिर से एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ, V इक्वल्स टू IR। लुक एट दिस, V इक्वल्स टू IR। सो V1 इक्वल्स टू व्हाट, IR1। अगेन V2 इक्वल्स टू व्हाट, IR2। एंड V3 इक्वल्स टू व्हाट, IR3। So we can write for all V1, V2, V3 is equals to V, and V equals to, we know that V equals to IR. So we can write IR equals to IR1 plus IR2 plus IR3। देखिए मैं सबको एरो करके दिखा दी हूँ कि इन तीनों को V1, V2, V3 के सम को हम V लिख सकते हैं आसानी से, और V इक्वल्स टू हमको क्या पता है कि IR होता है। तो यहाँ पर क्या किए, इन सब के जगह पर V नहीं लिख करके उसकी जगह को रिप्लेस कर दिए IR से। और यदि यहाँ IR लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ सब जो है IR के टर्म में है, तो ये सबको यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से प्लस 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 करके। यहाँ देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V, एंड V इक्वल्स टू व्हाट, IR। सो वी कैन राइट IR, एंड नाउ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि सब में I है, तो इन सब I को हटा दिए, बच क्या गया, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन R सिर्फ नहीं लिखेंगे, चूंकि ये कॉम्बिनेशन जो हमारा था वो सीरीज का कॉम्बिनेशन था। लुक एट दिस, सीरीज में था, इसलिए इस सीरीज वर्ड के लिए एक छोटा सा S ले लेंगे और इसके R के लेग के पास लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। RS इज अ इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ R1, R2 एंड R3। ओके, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर इसके लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या बता रहा है, एक्टिविटी में कह रहा है ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं चूंकि रजिस्टर इन पैरेलल को हमको पढ़ना है तो ऑब्वियसली यहाँ पैरेलल में रजिस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ भी 3 रजिस्टर्स है, R1, R2, R3, यानी 3 डिफरेंट रजिस्टर्स दे दिया, नाम दे दिया इसका, और एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर भी पैरेलल में लगा हुआ है। ये जो ज्वाइंट है वो XY है, जैसा कि और सब एक्टिविटी हम लोग देखे थे। यहाँ बैटरी है और ये की है, एंड देन ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। चलिए हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन XY। ओके,
of the three registers having register R1, R2 and R3. Connect it with the battery. बैटरी से कनेक्ट कर लेना है. A plug key, okay, and an ammeter. Also connect a voltmeter in a parallel with the combination of registers. Plug the key. अब की को स्विच ऑन कर देना, की का स्विच ऑन कर देना. Plug the key and note the ammeter reading. Note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. Voltmeter की भी रीडिंग ले लेनी है. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor. Okay. Across each register, this one, this one, this one is also V. This can be checked by the connecting the voltmeter across the each individual register. Okay. अब आगे आते हैं क्या हो रहा है. Take out the plug. अब क्या किया, ये जो हमारा सर्किट था ये पूरे सर्किट को हटा करके सिर्फ ये वाले पार्ट को ले लेंगे. आगे आते हैं, इस पार्ट को ले लिया गया. ओके. अब इस पार्ट को क्या कह रहा है. Take out the plug from the key. Remove the ammeter and voltmeter. Ammeter को भी हटा देना है, voltmeter को भी हटा देना from the circuit. Insert the ammeter in a series with the resistor R1. अब ammeter को क्या करना है, ये जो 3 रजिस्टर है R1, R2, R3, ammeter को यहाँ जो नीचे की तरफ लगा हुआ था उसको हटा करके बोल रहा है कि R1 के पास लगा दो. ठीक है, R1. Note the ammeter reading. I1 के लिए ammeter का रीडिंग नोट करो. फिर क्या करेंगे, इस अमीटर को सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 and R3. लेट दिस बी I2, I3 रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2 and I3. यहाँ पर एक बार एक्टिविटी को दिखा दे कि क्या कहा था कि वहां से जो नीचे की तरफ हमारा अमीटर लगा हुआ था ऐसे करके ज्वाइन था, याद होगा आपको. देख लीजिए यहाँ पर अमीटर यहाँ ज्वाइन था. इस अमीटर को यहाँ से हटा दिया गया है और इंडिविजुअली अलग अलग रजिस्टर के लिए कह रहा है लगाने के लिए और फिर से रीडिंग को नोट करने के लिए. तो यहाँ पर अमीटर को पहले यहाँ लगा दिया गया, फिर यहाँ लगा दिया गया, फिर यहाँ लगा दिया गया. अब अमीटर की रीडिंग को नोट करने के लिए बोल रहा है. ठीक, तो क्या देख रहे हैं कि इसके लिए I1 करंट होगा, इसके लिए I2 होगा, इसके लिए I3 होगा. यहाँ से देखिए, यहाँ एक डायग्राम से मैं समझाना चाहती हूँ. यहाँ से यदि I आता है तो क्या यही I तीनों रास्ते में जा सकता है? नहीं जा सकता. ये I ऐसे या तो सीधा जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो सेम I आएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद I बढ़ जाएगा. किस किस में? I1 में, I2 में, I3 में. इसका मतलब हुआ कि जो I1, I2, I3 है वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द I1, I2, I3 इक्वल्स टू I. इसके इक्वल होगा. तो वही आपको एक इक्वेशन बन जाएगा. I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, अभी बताया आपको. फिर हमको क्या पता है कि V इक्वल्स टू IR. अब V इक्वल्स टू IR, देखिए I का डिफरेंस हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब I के लिए एक फॉर्मूला बना लेंगे. किससे? V इक्वल्स टू IR से. तो V इक्वल्स टू IR से फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा. I को हम यहीं पर स्टैटिक कर दिए और R को इसके नीचे लेकर के आ गए. तो क्या फॉर्मूला बन गया? V अपॉन R इक्वल्स टू I. इसको पॉजिटिव वे में इधर लिख लेते हैं. I इक्वल्स टू V अपॉन R. देखिए R के लेग के पास P लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ P क्यों लिखा है. क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि इसके लेग के, R के लेग के पास क्या लिखा था? S. S किसके लिए लिखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था S. तो यहाँ P किसके लिए लिखा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का. ओके, तो I इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा इक्वेशन? I इक्वल्स टू V अपॉन RP. ओके, एंड ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर्स वी हैव. अब अलग अलग रजिस्टर के लिए अलग अलग बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा क्योंकि I चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, तो सबके लिए अलग अलग हम बना सकते हैं आसानी से. I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3. ठीक है. From equation 12.15 and 12.17, 12.15 is this: I equals to I1 plus I2 plus I3, and 12.17 is this: I1, I2 and I3. क्या हम लोग का नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? V अपॉन RP, V अपॉन RP. I के जगह पर इस चीज को ले लिया गया है. ठीक है, I नहीं लिखा गया है, उसकी जगह पर इसको ले लिया गया. तो V अपॉन RP इक्वल्स टू व्हाट? V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3.
अब क्या देख रहे हैं इसमें, क्या सिमिलर है, सिमिलर है V V V, तो इस V को, सब V को हटा देंगे। जैसे वहां पर क्या था अपना, वहां पर I सिमिलर था, यहाँ आ जाते हैं हम लोग उस इक्वेशन में एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, I सब में सिमिलर था ना, तो I को हटा दिया गया था, इधर भी I था, इधर I, इधर I, इधर I था, तो सब I को हटा दिए थे, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया था RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसको रिलेट कर दिए, तो आपको क्या होगा, हमेशा याद रहेगा। चलिए V V V और V, सब जगह V V है, तो सब V को हटा देंगे, और हटाने के बाद चूंकि ये क्या है, ऊपर में लिखा था V, तो उसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, जब जो रजिस्टर है उसका पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा, तो इस फॉर्मूला से हम उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। That's enough for today. Thanks for watching. Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in the comment section below. See you in next class.